Hello friends, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, we have completed the color coding for capacitors. In today's session, we will see the variable capacitors and inductors under the unit number 4, that is electronic components and signals. So today's topic number is 4.6, that is variable capacitors and inductors. So before start our today's session, we will see what are the prerequisites. So in last lecture, the types of color coding used for capacitors is seen. Then using numerals, then using color band system, using characters and direct printing of value on capacitors. So these topics we will cover in the last lecture. Now based on these topics, our today's topics are variable capacitors, classification of inductors, color coding of inductors, etc. So before start our today's lecture, we will see what are the learning outcomes of our today's topics. So you will able to know about the variable capacitors, then you will able to know about the classification of inductors, then you will able to understand the color coding of inductors, and you will able to learn the examples based on color coding of inductors. So these are the learning outcomes of our today's topics. So first we will see the variable capacitors. So a variable capacitor is a capacitor whose capacitance can be varied usually by rotating a shaft. अब वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करना। तो जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसे हम वेरी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या हो गया? इट्स अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड यूजुअली कैसे? बाय रोटेटिंग अ शाफ्ट, तो उसको बोलेंगे हम वेरिएबल कैपेसिटर्स। देन दीज कैपेसिटर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। अब उसके क्लासेस होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं। So general purpose type, then precision type, then transmitter type, then trimmer capacitors and special type such as phase shifter. तो ये हो गए हमारे कैपेसिटर्स के क्लासेस, टोटल 5 क्लासेस। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो वेरिएबल कैपेसिटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो देखेंगे। A variable capacitor consists of two metal plates separated by air as a dielectric. अब क्या होता है कि वेरिएबल कैपेसिटर में दो मेटल प्लेट्स होते हैं, दो मेटल प्लेट जिसको सेपरेट करेंगे यूजिंग एयर। अब ये जो एयर यूज करेंगे उसको एज अ क्या यूज करना है? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बराबर है। Then out of these two plates, one plate is fixed and other is movable as it is attached to the shaft. अब ये जो दो प्लेट्स होती है इसमें से पहली प्लेट जो होती है वो फिक्स्ड रहती है और जो दूसरी रहती है प्लेट वो मूवेबल होती है शाफ्ट को। तो शाफ्ट मूव होगा तो वो प्लेट भी मूव होंगी। सो इट इज नोन एज रोटर। अब जो मूवेबल प्लेट होती है शाफ्ट को जो अटैच होती है उसको बोलते हैं हम रोटर। By rotating the rotor, the distance of the moving plate d from the fixed plate gets changed and thus varies the capacitance. अब क्या होता है जब रोटर हम मूव करेंगे तो डिस्टेंस जो होता है मूविंग प्लेट का उसको डिफाइन करेंगे हम स्मॉल डी से। तो वो फिक्स प्लेट से चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, वेरी होगा। तो उसके कारण जो हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो वेरी होता है। सो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ ट्रिमर कैपेसिटर्स। तो ये जो प्रिंसिपल यूज होता है ये किसमें यूज होता है? ट्रिमर कैपेसिटर में। So the capacitance is expressed by C equal to epsilon 0 capital A divided by D small d, where epsilon 0 is the permittivity of free space, then capital A is the area of plates, and small d is the separation or distance between two plates.
सो द सिंबल एंड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। अब सिंबल और यूनिट देखेंगे वेरिएबल कैपेसिटर के का जो सिंबल है और उसके यूनिट्स हम देखेंगे। तो ये जो है ये है फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल और ये है वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। तो इन दोनों सिंबल में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड कैपेसिटर में एरो नहीं दिया है और वेरिएबल कैपेसिटर में एरो दिया है। ये एरो देने का मतलब है वेरिएबल, मतलब हम वेरी कर सकते हैं, उसके लिए ये एरो दिया है। और फिक्स्ड कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, तो उसमें एरो नहीं दिया है। तो एरो का मतलब होता है वेरी कर, मतलब वेरिएशन के लिए वो एरो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो द सर्किट सिंबल फॉर वेरिएबल कैपेसिटर इज एज शोन इन द फिगर बिलो। द वेरिएबल कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय C. The unit of capacitance is farad, microfarad, nanofarad and picofarad, same as the fixed capacitors. अब दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो यूनिट होता है वो सेम रहता है। कौन कौन से यूनिट होते हैं? फैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड एंड पिकोफैराड। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स। अभी वेरिएबल कैपेसिटर्स कहाँ पे यूज होता है उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। सो फर्स्ट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में यूज होता है, देन सिग्नल जनरेटर में भी यूज होता है, रेडियो रिसीवर में यूज होता है, टीवी रिसीवर में यूज होता है एंड ट्यून्ड एम्पलीफायर में भी वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता है। नाउ वी विल सी द इंडक्टर्स। So an inductor is a coil or electromagnetic device that oppose any change in current. तो इंडक्टर ये क्या होता है? इट्स नथिंग बट अ कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है। वो क्या करता है? वो अपोज करता है जो करंट होता है, चेंज इन करंट, उसको वो अपोज करता है। तो सिंपली इंडक्टर इज अ कॉइल। इंडक्टर्स और कॉइल्स प्रोबेबली वेरी मोर इन डिजाइन than any other component. Basically an inductor is a conducting wire wound on an insulator. अब जो ये इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर क्या होता है? ये बेसिकली इट्स अ कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो होता है उसको बोलेंगे हम कंडक्टिंग। तो ये इंडक्टर कंडक्टिंग वायर होता है जो वाउंड होता है इंसुलेटर पे वो वाउंड होता है। इंडक्टर इज द नेम ऑफ अ कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट का नाम है इंडक्टर। इट्स वैल्यू इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटर का वैल्यू हम क्या बोलते हैं? उसको कैपेसिटेंस वैल्यू बोलते हैं। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, तो इंडक्टर के लिए हम बोलेंगे इंडक्टेंस। दैट इज फॉर एग्जांपल इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर 5 एक्सेट्रा। नाउ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी और मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। तो इंडक्टेंस जो होता है वो किस में मेजर करेंगे हम? हेनरी में, दैट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। हेनरी, मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। Then it is denoted by capital L. Inductance is denoted by capital L. Henry is a very large unit. Henry जो है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। Therefore, millihenry and microhenry are another small units used for inductors. अब हेनरी मतलब वो बड़ा यूनिट हो गया, तो अब छोटा यूनिट चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। 1 मिली हेनरी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। 1 microhenry is equal to 1 into 10⁻⁶ Henry. So, the inductance of a coil is calculated by L equal to N into phi divided by I, where capital N is the number of turns, phi is the flux, and capital I is the current flowing through the coil. So the factors affecting the inductance are the number of turns, flux linkage and current. तो इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल L इक्वल टू कैपिटल N इंटू फाई दैट इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट दैट इज कैपिटल I। तो क्या हो गया कि जो फैक्टर्स इफेक्ट होंगे इंडक्टेंस पे वो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? पहला है नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल N, सेकंड इज फ्लक्स लिंकेज दैट इज फाई एंड फाइनली करंट दैट इज I। नाउ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इंडक्टर। अभी इंडक्टर के लिए कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं वो देखेंगे। तो पहला है सिलिकॉन स्टील, दूसरा है फेराइट्स और तीसरा है पावर्ड निकेल आयरन दैट इज एलॉय। तो ये तीन टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं इंडक्टर के लिए।
नाउ एप्लीकेशंस ऑफ फिक्स्ड इंडक्टर्स। अभी फिक्स्ड इंडक्टर की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इंडक्टर टाइप LC एंड पाई टाइप फिल्टर में यूज होता है। देन RF चोक इन ऑक्सीलेटर, इसमें भी फिक्स्ड इंडक्टर यूज होता है। देन इंडक्टर इन द LC रेजोनेंट सर्किट ऑफ एन ऑक्सीलेटर। देन रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में भी फिक्स्ड इंडक्टर्स यूज होता है। नाउ वी विल सी द कलर कोडिंग ऑफ इंडक्टर्स। अभी इंडक्टर की जो कलर कोडिंग होती है वो कैसे होती है वो देखेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टर कलर कोडिंग। फर्स्ट इज 4 बैंड कलर कोड that is used for civilian applications. Then second is 5 band color code that is used for military applications. तो ये दो टाइप्स हो गए इंडक्टर कलर कोडिंग के। पहला हो गया 4 बैंड कलर कोड जो सिविलियन के लिए यूज होता है, और दूसरा हो गया 5 बैंड कलर कोड जो कि मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया है ये 4 बैंड कलर कोड फॉर इंडक्टर्स का है, जिसमें कलर दिए हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। और इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड की वैल्यूज, थर्ड बैंड दैट इज मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड दैट इज टॉलरेंस, वो सब इसमें दिया है। तो अभी एग्जांपल देखेंगे। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर हैविंग द फॉलोइंग कलर कोड ब्लू, ग्रे, ब्राउन, गोल्ड। सो द सॉल्यूशन इज, अब देखो पहला कलर है ब्लू, दूसरा ग्रे, तीसरा ब्राउन और चौथा गोल्ड। तो पहला जो ब्लू कलर है वो टेबल में हमने इसके पहले देखा है टेबल में, उस टेबल में ब्लू की वैल्यू क्या है 6, ग्रे कलर की वैल्यू है 8, और ये जो थर्ड कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर है 10 दैट इज इंटू 10, और गोल्ड दैट इज टॉलरेंस, ये जो फोर्थ कलर होता है वो एज अ टॉलरेंस यूज होता है। तो गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू है ±5%। सो द वैल्यू इज 680 हेनरी। तो देखो यहाँ पे 6 है, देन 8 इंटू 10, मतलब ये हो गया 680 हेनरी, एंड द टॉलरेंस इज ±5%। सो सेकंड एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर हैविंग द फॉलोइंग कलर कोड ब्लू, ग्रे, गोल्ड, सिल्वर। तो देखो फिर से यहाँ पे ब्लू है, ब्लू कलर का वैल्यू है 6, देन सेकंड इज ग्रे, ग्रे की वैल्यू है 8, गोल्ड दैट इज मल्टीप्लायर, तो गोल्ड की वैल्यू है 0.1, सो इंटू 0.1, और जो फोर्थ कलर है सिल्वर वो होता है एज अ टॉलरेंस जिसकी वैल्यू है ±10%। सो द वैल्यू इज 6.8 माइक्रो हेनरी एंड द टॉलरेंस इज ±10%। नाउ फॉर 5 बैंड कलर कोड फॉर इंडक्टर्स। तो ये 5 बैंड कलर कोड का जो है ये टेबल है जिसमें कलर दिए हैं, उसकी फर्स्ट बैंड की वैल्यू दी है, सेकंड फर्स्ट बैंड के जो कलर्स है वो दिए हैं, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड की वैल्यू दी है, ये बाय डिफॉल्ट है फर्स्ट बैंड, देन फोर्थ बैंड दैट इज मल्टीप्लायर, और फिफ्थ बैंड दैट इज टॉलरेंस। तो उसका एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर हैविंग द फॉलोइंग कलर कोड सिल्वर, ब्लू, गोल्ड, ग्रे और सिल्वर। तो सॉल्यूशन में सिंस द फर्स्ट बैंड इज सिल्वर, दिस इंडक्टर इज यूज्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। सो सिल्वर दैट इज मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो पहला कलर कौन सा है ब्लू दैट इज वैल्यू इज 6, गोल्ड जिसको हम डेसिमल पॉइंट लेंगे, एंड ग्रे दैट इज वैल्यू इज 8, और सिल्वर है ±10%। तो वैल्यू क्या बन गई? सो द वैल्यू इज 6.8 माइक्रो हेनरी एंड द टॉलरेंस इज ±10%। अब ये माइक्रो हेनरी जो है ये बाय डिफॉल्ट उसका यूनिट है जो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। सो सेकंड एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर हैविंग द फॉलोइंग कलर कोड सिल्वर, रेड, वायोलेट, ब्राउन और गोल्ड। सो सॉल्यूशन इज सिल्वर दैट इज मिलिट्री आइडेंटिफायर, देन द रेड हैज कलर वैल्यू 2, then violet has 7, brown is into 10 microhenry, and the gold has tolerance ±5%. So the final value is 270 microhenry and the tolerance is ±5%. Now the program outcomes. तो आपको प्रोग्राम आउटकम दैट इज पीओज पता है, टोटल 10 पीओज है, PO1 to PO10।
तो ये 10 पीओ में से कौन से पीओज आज के टॉपिक को मैप करते हैं वो देखेंगे। तो कौन से पीओज मैप करते हैं? PO1, PO3, PO8 और PO10, ये 4 पीओज आज के टॉपिक्स को मैप करते हैं। सो नाउ वी विल समराइज अवर टुडेज टॉपिक्स। सो क्या देखा हमने? वेरिएबल कैपेसिटर्स देखे आज के सेशन में, उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर्स देखे, उसके बाद कलर कोडिंग ऑफ इंडक्टर्स देखा है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स दैट इज बेस्ड ऑन कलर कोडिंग ऑफ इंडक्टर्स, ये हमने आज के सेशन में ये चारों टॉपिक्स देखे। तो ये हो गई हमारी समरी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, and in the next lecture we will going to learn about the voltage and current sources. Thank you.